Good morning, dear friends. Once again we will start with wave optics, and today we will once again continue with the term diffraction of light. So friends, as told you earlier, the diffraction of light will be uh, the game of shadows. So last lecture I told you about the lighted region and the shadow region. So suppose if I want to find out the effect of diffraction, then diffraction of light. Yesterday I have explained you that whenever light enters on a sharp edge, when the light enters on sharp edge, it goes into the shadow region. It bends into the shadow region, and the phenomenon is called as diffraction of light. So when light is incident on sharp edges, when light is incident on sharp edges, it goes into the shadow region. And the phenomenon is called as, this is a very basic definition. Next, when we will study overall diffraction, then we will be able to define diffraction in many different ways. It means how it is making maxima, minima, what is the exact type, how it is different from the interference of light, that everything we will see afterwards. And the phenomenon is called as diffraction of light. So I have explained you many different cases about the diffraction of light. So we will go on explaining one by one out of them. So what are these cases? That first we'll see. So suppose we will start with first case. Last lecture I have explained you that case 1. So suppose this is my slit. This case I have explained very well in last lecture, so I will not explain in much detail. And this is the screen. Sorry. This is the screen. So now what happens when the light comes? It will be incident on the screen, not on all parts, because some part I have considered as the lighted region and some part I have considered as the shadow region. So today I will again explain you what are the lighted regions and what are the shadow regions. Okay. So suppose this is the boundary line. This is the borderline. Now what will happen? Above the boundary line, all the light will be able to incident on the screen. So this particular I will consider as lighted zone, lighted region. And this will be considered as the shadow region. Sorry. This will be considered as lighted region and this will be considered as shadow region. Now what happens? The light which incidents on the boundary, actually it is expected that this light will go without any deviation. But in practice this doesn't happen. In practice this doesn't happen, and I told you the light tilts somewhere and it goes into the shadow region. So now this is not shadow region or this is not lighted region. So this region comes out to be less bright region. This is lesser bright.
not in shadow region, not in lighted region. So less shadow और less lighted region, इससे कम लाइट मिलेगा, लेकिन ये शैडो भी नहीं रहेगा, शैडो थोड़ा कम हो जाएगा, तो शैडो रीजन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो एक्चुअल शैडो रीजन मेरा बन जाएगा ये, दैट विल बी द एक्चुअल शैडो रीजन। And this will be less shadow, less shadow region or less lighted region, less bright. So we have understood the fact that any corner you consider, from the corners light always bends. So that is why last lecture also I tried to explain you, once you see the image, the shadow of anything, as you go near to the screen, what happens, the shadow becomes very prominent, and as you go far from the screen, the shadow become less prominent. Okay, that after looking all these cases, we will go for that particular case also. Okay, so first we will complete these cases. Case 2 में क्या देखेंगे बेटा, केस 2 में भी सेम, लेकिन यहाँ पे मैंने I have now taken both as sharp edges, means I have kept my slit in between, I have kept my slit or sharp edge in means object in between, its edges will be sharp, considered as sharp, and this I am considering as the total screen. This, suppose this is my screen. Now what will happen on the screen, if you want to know the phenomenon of diffraction, then how it will be understood, that we will see. First of all, let me get the boundary. So ये आएगा इसका बाउंड्री, ये बाउंड्री करने के बाद में मिलेगा अपन को बाकी का इफेक्ट. So now what will happen, suppose my light is going in this way, so इसको मैंने कर लिया पूरा. Now ऊपर का और नीचे वाला, ऊपर और नीचे वाला, ये बन जाएगा मेरा लाइटेड रीजन. ये और ये बन जाएगा मेरा लाइटेड, ये भी बन जाएगा लाइटेड. और ये मेरा जो है दूसरा रीजन, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला जो रीजन है इसको बोलूंगा मैं शैडो रीजन. इसको थोड़ा सा मैं डार्क करता हूं, इसको थोड़ा सा मैं डार्क करता हूं, इसको बोलता हूं शैडो रीजन. Now what will happen, due to the diffraction of light, what will happen, this ray instead of going straight, it will bend, not much more, but somehow it will bend slightly, and it will give me like this structure. Okay, so this structure, now this will also be my lighted region, this will be lighted region, so light will enter into the shadow region. So now if I will keenly observe, so this will be my actual shadow region, this will be my actual shadow region. So this is the case number 2. तो पहले केस में हमने क्या पढ़ा है, पहले केस में हमने पढ़ा है, if the light for the single side, this is, see, for single side down this will be there, double side this will be there. Are you getting my point? Okay, now what will happen next, that we will see. Now if we will take the combination of these, if we will take the combination of these two, then what will happen, that we will go for understanding. So now we will think about the combination. So in this combination,
what I will do is that I will do one thing. I will take two slits. टू स्लिट्स में मतलब क्या है? टू स्लिट्स का मतलब मैं एक असेंबली तैयार करता हूं केस 3 केस 3 में क्या करेंगे? दो स्लिट ले लेंगे. तो यहां पे बेटा सपोज आई विल बी लिमिटिंग माय एरिया because in order to study that nicely perfectly my area must be limited, otherwise my lines will not be perfect. तो ये बन गया बेटा. तो यहां पे मैं क्या करता हूं? यहां पे मैं एक स्लिट बनाता हूं. What I made? I have tried to make a slit. यहां पे एक कॉर्नर होगा. इसको मैंने ऐसे क्यों बनाया? आपको समझने के लिए. ओके. और इसको मैं ऐसे ये बनाता हूं. ओके. और ये एक मेरा स्लिट बन गया. नाउ व्हाट विल हैपन? लेट मी ड्रॉ द बाउंड्री. लेट मी ड्रॉ द बाउंड्री. तो उसकी बाउंड्री में क्या हो जाएगा वो अभी देखते हैं. तो बाउंड्री में आई विल गेट लाइक दिस स्ट्रक्चर. यहां पे एक स्क्रीन खड़ा करते हैं. इसको स्क्रीन बोलता हूं मैं. ये बन गया अपना स्क्रीन. एंड नाउ इसका बाउंड्री लाइन बनाते हैं. इसका भी बाउंड्री लाइन बनाते हैं. तो यहां पे हमें ढूंढना होगा which one is the lighted region and which one is the shadow region. Suppose my light is coming in this way. This is the incident light. This is the incident light. Now what will happen? My light, when it will go, I will get this as my lighted region. This is my lighted region. This also as my lighted region. And remaining जो होगा वो बन जाएगा मेरा shadow region. तो remaining क्या है? तो ये जो है ये बन जाएगा मेरा shadow region. ये बन जाएगा shadow region. ये भी बन जाएगा shadow region. और ये भी बन जाएगा मेरा shadow region. Now what will happen? Once the light will incident on the corners, on the sharp edge. तो sharp edge पे incident करने के बाद क्या मिल जाएगा? ये shadow region में घुस जाएगा. और ये भी shadow region में घुस जाएगा. ये भी shadow region में घुस जाएगा. और ये भी shadow region में घुस जाएगा. Now what has inferred from this is ये जो रीजन मिल रहा है ये ना डार्क है ना ब्राइट है. ये ना तो डार्क है ना तो ब्राइट है. ये भी ना तो डार्क है ना तो ब्राइट है. तो due to this what we get a region of bright and dark bands. Region of, so we get what we get, so we get in all cases. ये अपना केस पूरा हो गया. तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है इसको हटा देता हूँ अभी. तो ये सब केस बन गया. कितना भी बना सकते हैं आप. इधर 2-3 और स्लिट डालोगे तो वो भी
बन जाएगा. दैट विल बी नॉट अ बिग टास्क. सो नाउ वी विल गो विथ, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ वी विल गो विथ the actual phenomenon, how this diffraction happens, so that we will try to study. Okay, तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर से एक ऐसा ही डायग्राम बनाएंगे, लेकिन अभी हम what we will do, we will be discussing that in the form of some band structure, in the form of the band structure. तो बैंड स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा वो भी देखते हैं. तो ये अपना मैं क्या करता हूँ, ये अपना मैं स्लिट तैयार किया. सो आई हैव कंसीडर दिस इज टू बी माय स्लिट. तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ ताकि आप ठीक से समझ सको उसको. ये ऑब्स्टेकल है मेरा. ऑब्स्टेकल मतलब वो शैडो बनाने के लिए लगता है, जिसके आगे लाइट जा नहीं सकता, लाइट को वो अड़ा के रखेगा, अटका के रखेगा. तो ये बन गया मेरा ऑब्स्टेकल. तो अभी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से क्या हो जाएगा, मेरा लाइट जो है वो क्या करते जाएगा, शैडो रीजन में घुस जाएगा. तो इसका शैडो रीजन और लाइटेड रीजन कंसीडर करने के लिए एकदम सिंपल है. यहां से अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन निकाला, जैसा हम हर टाइम करते हैं वैसे ही. अभी ये ठीक से बनाना पड़ेगा क्योंकि इससे आगे हम इसको लेके अपना कैलकुलेशन बनाने वाले हैं. तो वो उसका अपना कैलकुलेशन बनाएंगे इसको लेके. तो यहां तक मैं आ गया और यहां पे मैंने मेरा रख दिया स्क्रीन. तो स्क्रीन रखने के बाद क्या कर दिया मैंने, सो ये बन गया मेरा स्क्रीन. आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टूड. इसको बोला मैंने स्क्रीन. ये बन गया स्लिट और यहां से दिखाएंगे लाइट जो भी आ रहा है. तो अभी यहां क्या होता है बेटा, बीच वाला लाइट है, बीच वाला लाइट वो डायरेक्टली जाता है. अभी मैं क्या करता हूं, एरो वगैरह नहीं दिखाता आगे, क्योंकि आपको दिखने में बहुत सारी थिंग्स आपको करनी है. और क्या होता है, वी कैन नॉट डिसाइड हाउ मच इट विल पेनिट्रेट इनटू द शैडो रीजन. मतलब अगर ये स्लिट है आपका, तो यहां से जो लाइट आया है तो एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, एक ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है. तो ये जो रीजन बन रहा है, और यहां पे भी ऐसा भी हो सकता है, 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 ऐसा भी. अभी ये जो रीजन बन गया बेटा, तो यहां पे ये एकदम ब्राइटेस्ट बन जाएगा. ये ब्राइट, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट. इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट. उसको ही बोलते हैं मैक्सिमा. ये मैक्सिमा क्या है, बाद में मिनिमा क्या है, वो हम पूरा देखेंगे. नाउ हियर इफ आई विल गो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट, then I will come to know that here also I am getting maxima and minima. What is that? That we will see. So यहाँ पे this will deviate slightly. It will go into the shadow region. क्योंकि यहाँ पे ये लाइटेड रीजन है, ये शैडो रीजन है, ये आप ध्यान में रखो. वो भी लिख के रखता हूँ. ये कंसेप्ट आपके लिए नया है, इसलिए मैं बार बार वो पूरे वर्ड्स है उनका नाम आपके सामने ले रहा हूं, ताकि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट क्लियरली एंड फाइनली. तो ये बन गया मेरा शैडो रीजन, ये भी शैडो, ये भी शैडो, और ये बन गया ब्राइट लाइटेड. तो ये कितना बन गया, ये मेरा बन गया लाइटेड. ये लाइटेड रीजन में यहाँ पे ब्राइट होगा, और नीचे भी वैसे ही हो जाएगा, नीचे भी वैसे ही हो जाएगा. अरे बाप रे, थोड़ा सा डायरेक्ट ज्यादा हो गया, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ.
इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने स्टडी के लिए हम थोड़ा सा लिमिट में उसको स्टडी करें। नहीं तो ज़्यादा भी कर दिया तो क्या होता है, ठीक से उसको स्टडी नहीं कर पाते। तो ये बन गया। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस स्ट्रक्चर विल गिव राइज टू सम डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। सो वी गेट अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन। तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आपको आप मैक्सिमम दिखाओगे तो ये ऐसा बन जाएगा, एक बन गया। बाद में और लाइट आएगा तो वो और इसका इंटेंसिटी, ये जो शैडो है, शैडो का इंटेंसिटी कम करेगा, मतलब लेस डार्क लेस डार्क लेस डार्क, थोड़ा सा ब्राइट भी बन जाएगा। तो यहां से अपन को ऐसे स्ट्रक्चर मिलता है और उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम डिफ्रैक्शन पैटर्न। सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे होता है। तो ये कहलाएगा डिफ्रैक्शन पैटर्न। So this is the thing how actually we get the diffraction at this side. अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो मैं इसको ब्लैक से थोड़ा सा ये कर देता हूँ। ये क्या होता है, डिक्रीजिंग इंटेंसिटी से चला जाता है, पैटर्न ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न को ही हम अ पैटर्न ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं हम उसको। इसको क्या बोलते हैं हम, पैटर्न ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। तो मतलब समवेयर लाइक इन इंटरफेरेंस वी वर गेटिंग इंटरफेरेंस पैटर्न टू बी लाइक दिस। अगर आपने इंटरफेरेंस पैटर्न को पढ़ा है, जो मैंने सिखाया आपको, तो इंटरफेरेंस पैटर्न आपने पढ़ा है, ये ऐसा आएगा, दिस इज इंटरफेरेंस पैटर्न। जो होता है लाइट की वजह से इंटरफेरेंस होता है। अभी हम अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न लिखा हमने, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे लिखना पड़ेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए आपको सेंटर को मैक्सिमा लेना पड़ेगा, दिस विल बी सेंट्रल मैक्सिमम, और दोनों भी साइड को आपको मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी वो करना पड़ेगा। सो इन दिस वे वी आर गेटिंग द मैक्सिमा मिनिमा ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। तो इसको मैं ठीक से करता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये मिल गया अपन को डिफ्रैक्शन पैटर्न। So what are the main important characteristics for the diffraction pattern? So that is very important. तो हमने यहाँ पे देखा है what happens when the light comes, it spreads. So middle वाला जो region होता है central maximum, इसको बोलते हैं central maximum. Okay, ये central maximum. बाद में फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, सो हम उसको ऐसे करके लेते हैं तो हमें मिलता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा ये क्या है, ये आप ब्राइट एंड डार्क से कंपेयर कर सकते हो। तो जैसे आप ब्राइट और डार्क इसको कंपेयर करते हो, द सेम थिंग ऑन द सेम वे दिस कैन बी कंसिडर्ड, दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द मैक्सिमा एंड मिनिमा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी, वो हम करेंगे अभी सिंगल स्लिट के लिए, इसको बोलते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। ओके, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका
सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अभी अगर हमने डबल स्लिट लिया तो डबल स्लिट में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वो डिफरेंट हो जाएगा। डबल स्लिट में क्या बन जाएगा, दो स्लिट बन जाएगा। दो स्लिट की वजह से हमें दो सेंट्रल मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन क्या हो जाएगा, स्लिट के बीच में ये स्लिट है, आगे और एक स्लिट है, कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर निर्भर करता है कि हाउ मच विल बी द लाइटेड रीजन एंड हाउ मच विल बी द शैडो रीजन। तो ये जो है ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्लिट विड्थ। क्या बोलते हैं हम, स्लिट विड्थ। सो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस पूरा, इसको हम बोलते हैं स्लिट विड्थ। तो स्लिट विड्थ के ऊपर क्या डिपेंड करता है, ये पैटर्न किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी हम देख लेंगे। सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। हो गया बेटा। तो अभी हम जाएंगे थोड़ा सा उसका कंसीडर करने के लिए, क्या होता है अपना स्लिट विड्थ और क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्लिट एंड द स्क्रीन। तो ये टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम पढ़ लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको लेके थोड़ा सा इसका physically how we can study that we will try to find. Okay, तो यहाँ पे टू टाइप के डिफ्रैक्शन होते हैं। एक होता है फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन एंड दूसरा होता है, उसको बोलते हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। ये आपको स्टडी में नहीं है, तो इसका मैं ज़्यादा ये कुछ नहीं करने वाला हूँ। एक ही टाइप का डिफ्रैक्शन हम स्टडी करेंगे। तो फ्रेनेल्स एंड फ्राउनहोफर, तो इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज ओनली दैट, डिफरेंस इज ओनली नंबर वन, एक में होता है सोर्स इज नियरर एंड सेकेंड में होता है सोर्स इज फार। तो एक टाइप के डिफ्रैक्शन में आपका सोर्स अगर नजदीक है तो एक टाइप का डिफ्रैक्शन मिलता है, सोर्स अगर फार है तो आपको दूसरी टाइप का डिफ्रैक्शन मिलता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट, मतलब सोर्स नजदीक है, सोर्स फार है, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है उसके ऊपर, वो हम थोड़ा सा देखते हैं। सपोज ये मेरा सोर्स है, यहाँ पे सोर्स इज नियर, अगर सोर्स नियर है यहां पे, तो उसका लाइट रेज ये इन सब डायरेक्शन में जाएगा। बराबर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अभी यहां पे मैंने ज्यादा लाइट रेज नहीं निकाला है, वेव्स नहीं निकाला है, ज्यादा वेव्स मैंने कम निकाला है, बहुत ज्यादा आता है। तो किसी भी एक पॉइंट के लिए अपन को अगर स्टडी करना है तो बहुत ज्यादा है। और सपोज आई हैव टेकन दिस पॉइंट, तभी देखो बेटा, यहां पे अगर मैंने मेरा स्लिट लिया, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, इसका जो ये बाउंड्री है, यहां से आपको बहुत डायरेक्शन में, बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में आपका टिल्टिंग मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेज आएंगे और वो डिफरेंट डायरेक्शन में खुद को डिफ्रैक्ट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। सो यहाँ पे द केस ऑफ गेटिंग प्रोमिनेंट डिफ्रैक्शन, तो ये थोड़ा सा अपन को we will have the defect, not defect, something which we can call it as, it will overlap. So bands will overlap.
in this case bands will overlap. और अगर source is far तो कुछ problem नहीं है. अगर source अपना far है, then I have explained you what happens when the source is far. So if the source is far, then no problem. If the source is far source के लिए अपना rays कैसे आएगा? Parallel rays आएगा. तो we will get regular diffraction. There is no problem. इसका ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगा. So रेगुलर सोर्स के लिए हम ऐसा रेगुलर डिफ्रैक्शन कर सकते हैं. लेकिन यहाँ इसके लिए अपना ये शार्पनेस है, ये थोड़ा सा, ये एक ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये और एक ऐसा हो जाएगा. तो यहाँ पे फॉर मी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ क्लियर पैटर्न. सो दिस इज अ क्लियर डिफ्रैक्शन पैटर्न, दिस इज अ क्लियर पैटर्न. But whereas this is not clear. इसका भी अलग अलग सा यूज होता है, इसके भी अलग अलग से मायने होते हैं. How to get, what to do with that, everything is there. तो ये जो दो है, इसमें अभी हम क्या करेंगे? अपना सोर्स तो हमेशा फार ही रहता है. Our source is always far away. So इसके लिए क्या करते हैं? In order to study the diffraction regularly, in order to study the refraction in regular ways, we always keep a convex lens. We always keep a convex lens. तो convex lens क्या करती है बेटा? तो यहां से अगर रेज जा रहे हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस का इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ. तो इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज दैट अगर मैंने इसके बीच में कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया तो क्या हो जाएगा? इट विल ट्राई टू कॉन्वर्ज ऑल द रेज. तो ये पूरा है ना, ये अपना ऐसे बन जाएगा और वो बाद में पैरेलल बन जाएंगे, बाद में वो पैरेलल बन जाएंगे. So there is very important step in this setup is to keep the convex lens nearby. So कैसा करेंगे? जैसे कि convex lens का फोकस जो है वो हायर हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? जो रेज आ रहे हैं वो यहाँ पे we will get the parallel rays. तो ये एकदम सिंपल है, ये मैंने आपने ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में पढ़ा भी है. ओके, तो इसके आगे हम स्टडी करने जाएंगे दैट विल बी कॉल्ड एज द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन. सो वी विल स्टार्ट विद द डेरिवेशन नॉट स्टडी ऑफ सिंगल स्लिट diffraction. It will take one more lecture, I know that. I will try to finish within this lecture, but it is not possible because there will be many formulae and then you have to get the idea, because whatever the derivation I will show here, that will be very crucial and critical. Are you getting my point? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो यहाँ पे हम स्लिट तैयार करते हैं. यहाँ पे अपना स्क्रीन है, ये स्क्रीन बन गया, ये स्लिट बन गया. तो अभी एकदम लेस प्रोमिनेंट लाइन बना के लेते हैं. यहाँ पे क्या हो जाएगा वो देखते हैं. इसके पहले उसके आगे एक ये लगाते हैं, क्या लगाते हैं? कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, इन ऑर्डर टू गेट परफेक्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न. इसको ठीक से देख लीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड. नाउ क्या हो जाएगा? सपोज यहाँ पे लाइट रे आ रहे हैं,
तो मैं क्या करता हूं, इसको बोलता हूं स्लिट विड्थ। तो ये बन जाएगा मेरा स्लिट विड्थ, उसको बोलता हूं मैं ए। ये जो डिस्टेंस है इसको बोलता हूं मैं स्लिट विड्थ ए। उसके लिए मैं लिख के लेता हूं, इसको बोलता हूं स्लिट विड्थ ए बन गया। यहां पे मैं क्या करता हूं, 3 पॉइंट कंसीडर करता हूं, एक मिडल वाला और एक एंड वाला। ओके, तो आज अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि लाइट वहां से शैडो रीजन में घुस जाता है, तो इसका मतलब लाइटेड रीजन में नहीं जाता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि शार्प एज पे क्या होने वाला है। पहले मैं स्क्रीन को ठीक कर लेता हूं, अपना स्क्रीन थोड़ा सा टिल्ट हो गया था, उसको ठीक से बनाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये जो एज है, इस एज पे ये ऐसे भी जा सकता है, नीचे भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, स्प्रेड होता है। एक्चुअली डिफ्रैक्शन आप देखोगे तो आई विल सजेस्ट यू टू डू वन एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? आपका जो ब्लेड होता है, रेजर वाला शेविंग रेजर ब्लेड, सबने देखा होगा उसको, शेविंग का जो रेजर होता है उसका ब्लेड। तो अभी सपोज आपने ये ब्लेड लिया, ये ब्लेड का ज्यादा निकालने का जरूरत नहीं है, अपन को खाली देखना है आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो ये ऐसा मैंने ब्लेड ले लिया। अभी यहां पे शार्प एज होता है और यहां पे भी शार्प एज होता है। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मेरा लाइट, सपोज माय लाइट इज कमिंग लाइक दिस, तो यहां पे when it will incident on this sharp edge, it will try to go in all possible directions, and you will get some pattern there, and that is actually the property diffraction of light. उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लेजर का सोर्स ले सकते हो। लेजर मालूम है आपको, तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लेजर। तो लेजर हम उसको बोलते हैं, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म उसका क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये आपको लेजर अभी नहीं है, अगर आप इंजीनियरिंग में वगैरह गए, नहीं तो इफ यू आर गोइंग फॉर कोर साइंस, कोर फिजिक्स, देन द स्टडी ऑफ लेजर विल बी देयर फॉर यू पीपल, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर दैट। तो ये आपका बन जाएगा। तो उसमें क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइट रे आता है। स्ट्रेट लाइट रे आने के बाद यहाँ पे वो जो शार्प एज है वहां पे हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है यहाँ पे, लेकिन स्प्रेड मतलब डिफ्रैक्शन हो जाता है वहां। ओके, एंड दिस फेनोमेनॉन, तो ये इसको आप ये स्लिट का ये समझ सकते हो। तो अपना अपना स्लिट भी आप बना सकते हो। 2 ब्लेड को ले लो, 2 ब्लेड को ऐसे रखो और लाइट डालो, तो क्या हो जाएगा, अभी ब्लेड जो है वो बन जाएगा मेरा ऑब्स्टेकल, और ब्लेड का जो शार्प एज है वो मेरे को मिल जाएगा अपना डिफ्रैक्शन के लिए जो शार्प एज उसको कहलाते हैं, वो मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, सो आई विल सपोज दे आर गोइंग लाइक दिस। ये तीनों भी क्या करेगा, शार्प एज, यहाँ पे शार्प एज नहीं है, लेकिन मैंने कंसिडर किया है कि लाइट हर जगह स्प्रेड हो जाता है आपको समझने के लिए। तो अभी ये जो डायग्राम है, यहां से अपना स्टडी चालू होता है। तो ये जो डायग्राम है, आवर स्टडी विल स्टार्ट विद दिस डायग्राम। तो यू विल आस्क मी व्हाट इज दैट, सो दैट वी विल गो ऑन स्टडी। ओके, तो इसको मैं प्रॉपरली ड्रॉ करता हूं, और ये जो 3-4 लाइन बनाया मैंने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये क्या है, इसका स्टडी क्या करते हैं वो अभी देखते हैं। आगे वाले लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम उसका डीप स्टडी करेंगे और उसका कैलकुलेशंस कैसे आता है वो भी देखेंगे। तो ये 3 पॉइंट हैं, इनको मैं नोट डाउन करता हूं।
और मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ठीक है इधर तक बनाना पड़ेगा मैं, क्योंकि नीचे स्क्रीन लिखा है मैं, क्योंकि मेरे को निकालने के लिए भी उसका प्रॉब्लम आता है। अगर मैंने ठीक से नहीं निकाला तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब आपको समझने के लिए दिक्कत हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पे मेरा फिर से मैं स्क्रीन बनाता हूँ। अरे यार स्क्रीन तो ठीक नहीं आ रहा है मेरा, हाँ ये भी आ गया, ठीक है। तो ये बन गया अपना स्क्रीन। और अभी यहाँ पे क्या करने का, जैसा मैंने बताया था, ये एक एंगल लेते हैं। सपोज ये थीटा एंगल से डेविएट कर दिया आपने मेन इसको, ये थीटा बन गया। ये बीच वाला भी कर देते हैं, तो इसको भी पैरेलल बनाओ। ओके, ये भी थीटा से डेविएट हो गया, और ये भी सोचो अगर थीटा से डेविएट हो गया। सो हियर व्हाट आई विल गेट, तो मैं क्या करता हूं, ये बीच वाला है ना, बीच वाले को ब्लैक से दिखाता हूं ये, क्योंकि ये मैंने पहले निकाला नहीं था, इसको ब्लैक से दिखाता हूं, नहीं तो आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये बन गया, और इसको भी ठीक से बनाता हूं, ये बन नहीं गया है ठीक से, इसको भी ठीक से बना देते हैं। तो ये क्या बन गया, इन ऑल केसेस हाउ मच इट हैज बीन डेविएटेड, कितना डिफ्रैक्ट हो गया है, उसका मेजर विल बी गवर्न बाय यूजिंग द थीटा। तो ये मेरा थीटा बन गया, हर केस में वो थीटा सेम हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले मेरा ये ए था, अब ये ऐसे बन गया, ये भी ऐसे बन गया, ये भी ऐसे बन गया। तो मतलब कितना, कितने से वो आगे चला गया, थीटा। तो अगर ये है तो यहां पे भी मैं व्हाट आई कैन डू, आई कैन ऑल्सो मेक परपेंडिकुलर हियर, आई कैन ऑल्सो मेक परपेंडिकुलर हियर। तो अगर ये ए है, अगर ये ए है, ये थीटा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी डायग्राम को मैं ठीक से बना देता हूं। ये ओरिजिनल डिस्टेंस था उनके बीच में, बराबर। और अभी वो आगे चला गया है। ओके, एक मिनट, ओके। तो यहां पे क्या बन जाएगा, जितने एंगल से ये ऊपर गया उतने एंगल से मेरा नॉर्मल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा थीटा। ओके, और एक्चुअली ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, थोड़ा सा मैं गलत बोल रहा हूं, ऐसे हो जाएगा ना, ये ऐसे है। अभी इसको मैं ऐसे निकाला, हाँ, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, बराबर है, और ये हाइपोटेनस बन जाएगा। तो इतना भी नहीं, थोड़ा सा ऐसा छोटा बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, ये ए बन जाएगा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? और ये जो है, ये बन जाएगा हाउ मच इट हैज बीन शिफ्टेड। तो इसको ये बन जाएगा पाथ डिफरेंस। तो अगर आपने देखा यहां पे, अगर मैंने और एक रे किया तो ये चेंज हो जाएगा। जितना मैं आगे चला जाऊं, जितना मैं आगे चला जाऊं उतना ये चेंज हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, थीटा, ये अपना ये थीटा है, तो साइन थीटा कितना बन जाएगा, अपोजिट, इसको मैं x बोलता हूं, x अपॉन a। तो x का ये कितना हो जाएगा, a साइन थीटा। ये मेरे को आपको बताना है। तो ये जो कैलकुलेशन है, बाय टेकिंग दिस कैलकुलेशन इन माइंड, वी विल गो फर्दर
फॉर कैलकुलेटिंग द पाथ डिफरेंस। यहाँ पे भी पाथ डिफरेंस होता है। तो आप बोलोगे सर पाथ डिफरेंस का क्या है आपको, क्योंकि यहाँ पे जितना है आगे चला जाएगा तो उसमें और ओरिजिनल में डिस्टेंस का डिफरेंस बन जाएगा, डिस्टेंस का डिफरेंस बन जाएगा। क्योंकि अगर मैं ऐसा कंसीडर करूं तो ये दोनों के लिए ये यहां से जा रहे हैं और इसको मैं अगर इसको ए पकड़ा, ये ए साइन थीटा बन जाएगा। तो यहां से ये डिस्टेंस ये थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला था आपका ओरिजिनल मतलब ये है ना, मतलब आपको आई मीन टू से ये जो डिफरेंस क्रिएट किया है हर एक ने, वो कितना किया है, वो थीटा का किया है। तो इन द फॉर्म ऑफ स्लिट विड्थ, सो वी कैन एक्सप्रेस in the form of slit width। तो बेटा इसको हम स्लिट विड्थ के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा वो अभी हम देखते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। अभी नोट डाउन नहीं किया तो भी चलेगा, फिर से कल मैं जब पूरा उसका ये बताऊंगा आपको। आज मैं क्या करने जा रहा हूँ, आज आपको सब वो क्या है, कैसे आता है, इसका कैलकुलेशन कैसे बनता है वो दिखाऊंगा। एंड टुमारो वी विल डू द एक्चुअल एग्जैक्ट कैलकुलेशन अबाउट द डिफ्रैक्शन। तो आज के लिए ये हम पूरा कैलकुलेशन देख लेंगे। तो बेटा ये क्या है वो देखते हैं अभी। ओके सपोज मैं एकदम सिंपल केस कंसीडर करता हूं, केस 1। तो केस 1 कैसे बन जाएगा, ओके ये थीटा बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, आपको वो तो मालूम है। थोड़ा सा आपका ये ड्राइंग आपको समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और ये क्या है, अभी ये अगर मैंने डिस्टेंस निकाला है तो ये डिस्टेंस है ए, सॉरी तो अगर मैंने ये डिस्टेंस निकाला है तो ये डिस्टेंस है मेरा ए, कौन सा, ये स्लिट विड्थ। तो ये स्लिट विड्थ के बाद में, स्लिट विड्थ के बाद में अपन को क्या डिसाइड करना है और क्या डिफाइन करना है, दैट आल्सो वी विल गो ऑन अंडरस्टैंडिंग। ओके तो इसको मैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट बना देता हूं, और आगे वाली केस में हम उसका एग्जैक्टली स्टडी करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर लेता हूं। ओके अगर ये थीटा है मतलब ये भी थीटा ही रहेगा। आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इसको अगर मैंने एग्जैक्टली दो पार्ट में बांट दिया तो ये कितना बन जाएगा, a/2, ये बन जाएगा a/2। तो यहां पे अगर मैंने इसको x1 बोला, इसको अगर x2 बोला, ऑफ कोर्स हर टाइम ये थीटा सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी वो कितने एंगल से ये कर रहा है, कितने एंगल से टिल्ट हो रहा है। यहाँ पे भी वो कितने एंगल से टिल्ट हो रहा है, थीटा एंगल से ही टिल्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैंने वो उसका ये रेज का अगर मैंने एनालिसिस किया, ये एक हो गया और यहाँ पे भी वही हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए वो 0 है, पहले वाला ही हो, तो ये डिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो ये भी अगर थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये डिस्टेंस मेरा बन जाएगा x1। तो ये डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं, x1। तो यहाँ पे अपना कैलकुलेशन कैसे बन जाएगा देखो बेटा, ये एकदम डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आई अंडरस्टैंड दैट समझने के लिए एकदम डिफिकल्ट है। एक बार समझ लिया तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहली बार समझने के लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। अगर किसी को नहीं समझ रहा है तो आराम से इसको देखिए। तो ये भी थीटा बन गया, ये भी थीटा बन गया।
तो छोटे वाले ट्रायंगल में x1 कैसे लिख सकते हैं बेटा, x1, तो वो लिखने के लिए हम साइन थीटा का यूज करेंगे। वो हम किसका यूज करेंगे, साइन थीटा का। तो साइन थीटा कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये बनेगा a/2, ये बनेगा थीटा और ये बनेगा x1। तो साइन थीटा बन जाएगा अपना, साइन थीटा विल बी x1 अपॉन a/2। सो मेरा x1 कितना बन जाएगा, x1 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, a sin थीटा अपॉन 2। x1 कितना बन जाएगा, a sin थीटा अपॉन 2। Whereas ये अभी मैंने कंसिडर किया थोड़ा सा ऐसा, तो x2 बोलूंगा इसको मैं, ये थीटा बोलूंगा, ये कितना हो जाएगा, पूरा a बन जाएगा, पूरा कंसिडर कर रहा हूं, आई एम कंसिडरिंग ऑल एवरीथिंग। तो एवरीथिंग, इन ऑर्डर टू कंसिडर एवरीथिंग, व्हाट विल बी माय डायग्राम, मेरा डायग्राम कैसे बनेगा, इसको मैं ऐसे करूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा a, ये बन जाएगा थीटा और ये बन जाएगा x2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू x2 अपॉन a। तो x2 कितना बने, a sin थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अभी इसको मैं आगे और जाके इंटरप्रेट करता हूं। ओके, तो यहां पे मैंने पार्ट कितना किया, I have divided slit into 2 parts। तो यहाँ पे अपना स्लिट कितने पार्ट में डिवाइड किया है अपन ने, 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब इस स्लिट को 3 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। तो स्लिट को अभी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो उसको करने के लिए मैं इसका ही थोड़ा सा और इसको ये करता हूं, थीटा तो वही रहेगा, थीटा तो वही रहेगा। इसको ठीक से बनाता हूं और ऐसे किया, और यहां पे मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया। अभी देखो, अभी आपको मालूम है ये सब थीटा ही है, तो इसको बोलता मैं a/3 a/3 a/3। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पे क्या बन जाएगा, अभी साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको x1 बोलता हूं, x2 x3। ओके, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन a/3। ओके, ये कितना बन जाएगा, तो x1 कितना बन जाएगा, a sin थीटा अपॉन 3। यहां पे ये 3 a/3 कितना बनेगा, अभी यहां पे ये कितना बनेगा, 2a/3 बनेगा। तो यहाँ पे साइन थीटा का मतलब x2 इज अपॉन 2a/3, ये कितना बन जाएगा, तो x2 विल बी 2a sin थीटा अपॉन 3, दैट विल बी गॉन। हाँ, और यहाँ पे पूरा बन जाएगा, a बन जाएगा। मतलब इसका आपको क्या सीखना है, ये कैलकुलेशन बाद में करते हैं साइन थीटा वगैरह का, पहले आपको कैलकुलेशन क्या याद में रखना है वो हम देखते हैं। अगर मैंने स्लिट को डिवाइड किया 1 2 3 4 5 किया, तो ये बन जाएगा a/5 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 a/5। तो ये दोनों का मिला के बन जाएगा। हाँ, तो ये अगर कैलकुलेशन हम करेंगे तो कहीं पे अपन को ऐसा स्ट्रक्चर मिल सकता है। वो क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, अभी हम देखते हैं। सपोज मैंने 2 पार्ट किया, मतलब ये बन गया a/2 a/2, टोटल मेरा कितना बन गया a। सपोज मैंने 3 पार्ट किया, 1 2 3, तो मिलेगा a/3, ये a/3 a/3, तो ये बनेगा 2a/3 और ये पूरा बनेगा a।
और ये भी बनेगा 2a/3। लेकिन अपन को ऊपर से चालू करना है मेजरमेंट। अभी मैंने चार पार्ट किया, 1 2 3 4, तो ये बनेगा a/2 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 a/2, सॉरी a/4 बन जाएगा, नॉट a/2, क्योंकि ये पूरा a है। ओके, अभी क्या बन जाएगा, a/4 ये a/2 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, a/2 प्लस a/4, सो 6a/8 मतलब 3a/4, और ये पूरा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा a। तो ऐसे हमने कर दिया उसको, बहुत सारे पार्ट किए उसके, 1 2 3 4 5 पार्ट किया, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा a/5, ये बन जाएगा a/5 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 a/5, ये दोनों को जोड़ा मैंने तो 2a/5, ये तीनों को जोड़ा तो 2a/5 प्लस a/5, दैट विल बी 3a/5, ये 4 किया तो 4a/5, और ये 5 किया तो बन जाएगा 5a/5, इसका मतलब ये बन जाएगा अपना a। So in this way we can get the expression for the slit width. So whatever is there regarding for the slit width, that we will get the idea in tomorrow's lecture. So for today we will stop here in the part of the diffraction, and now let me explain you more about the things which are important for you for your upcoming major test. So for upcoming major test, what you have to do? Okay, so first of all you have to solve the problems on interference, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, बाद में मतलब इसमें मतलब इन शॉर्ट आपको YDSE का स्टडी करना है। यहाँ पे Imax, I mean, Amax, Amean, tan डेल्टा, वो मैंने सब कैसे किया वो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया था, वो सब आपको करना पड़ेगा। तो इस एग्जाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट है, पहले मैं सब्जेक्टिव बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या मैं आपका प्रैक्टिस तो लेने ही वाला हूँ। 1 2 3 लेक्चर में डिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम पोलराइजेशन खत्म करेंगे, पोलराइजेशन होने के बाद अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस चालू हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, पहले तो आपको हाइजेंस प्रिंसिपल, वेव फ्रंट, सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल। ओके, तो मैं लिख के देता हूँ बोर्ड के ऊपर, आपको क्या क्या करना है, वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल, हाइजेंस कंस्ट्रक्शन, बाद में हाइजेंस प्रिंसिपल, ये दो एक इकट्ठा ही है। टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट, स्पेरिकल, प्लेन वेवफ्रंट, सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट, वो सब करना है। बाद में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, एंड बाद में रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट। तो प्लेन वेवफ्रंट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन होता है। बाद में आएगा आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद में आएगा आपका YDSE। तो अभी तक जो मैंने सिखाया है उसका अगर आपको रिकैप लेना है, उसका फॉर्मुलेशन आपको स्टडी करना है, तो इन सब चीज़ों का आपको स्टडी करना पड़ेगा। एंड बेहतर है इसी में है कि आप YDSE को ठीक से कर दीजिए, बिकॉज YDSE इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें इधर उधर कुछ नहीं हो सकता, आपको वो करना ही पड़ेगा। YDSE नहीं किया तो आपको बाद में बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो आपका इंटेंसिटी का जो है, जो मैंने आपको कल सिखाया, कल का लेक्चर वैसे ही उतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए जैसे मैंने आपको बोला था। जैसे अभी आज का लेक्चर अपना इम्पोर्टेंट है, वैसे ही कल का लेक्चर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
So my plan will be tomorrow again I will continue with diffraction, tomorrow, day after tomorrow, whatever it is there, and then we have to go further for the polarization. और इसके बाद में बीच में अपन को डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच में क्या अंतर होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्रैक्शन एंड द इंटरफेरेंस, वो भी देखना पड़ेगा। वो देखने के बाद अपन लोग आगे जाएंगे, उसके लिए उसको बोलते हैं पोलराइजेशन एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रूस्टर्स लॉ एंड मैलस लॉ। ओके, वो इतने लॉ, मैलस लॉ हालांकि आपको प्रिज्म में एक्चुअली स्टडी करने का होता है, लेकिन हम वो अभी स्टडी करके आपका वे ऑप्टिक्स पूरा करेंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन द वे ऑप्टिक्स इज यू हैव टू implement equations all times and some formulae. I will not call that all formulas, but beta some of the formulas you must be keeping in mind in order to do these all works necessarily, this YDAC, diffraction and everything in one line. Okay, so I will not take your much time today. We shall stop here. Tomorrow we will come up with the next part of this, that is the derivation for the single slit diffraction. Till that, stay home, stay safe, stay tuned with physics. Thanks a lot for watching my lecture. Wish you best of luck for your studies. Bye bye.